ایک اسمبلی کے ایک ہی روز دو الگ اجلاس طلب. پنجاب میں سیاسی بحران. حکومت دوسرے روز بھی بجٹ پیش نہ کر سکی. 8 گھنٹے 41 منٹ کی تاخیر سے کارروائی شروع ہونے پر اسپیکر کی وزیر خزانہ کو میزانیہ پیش کرنے کی دعوت. گورنر نے اجلاس برخاست کر دیا. اب کارروائی غیر آئینی ہے. اویس لغاری کا اعلان. گورنر کا سیشن برخاست کرنے کا اختیار ختم ہو چکا. پرویز الہی کا موقف. کارروائی آج دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دی. ملک الرحمان نے ایوان اقبال میں اجلاس 2 بجے طلب کر لیا. ڈیوٹی کہاں کرنی ہے، سٹاف پریشان. اجلاس بلایا جاتا ہے اور چند منٹوں میں ایڈجرن کر دیا جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بادشاہت ہے اور یہ موجودہ اسپیکر راجہ اندر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے وزیر جو بجٹ پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ دعائیاں دے رہے تھے اور ان کو آئی جی اور اپنا جو ہے چیف سیکرٹری کی یاد ستا رہی تھی. ہم کہتے ہیں کہ صوبے کی عوام کے بھلائی کے لیے بجٹ پیش کرنے دو. یہ کہتا ہے آئی جی کو پیش کرو. اس کو ہم عدالت میں پیش کریں گے، اب عوام کی عدالت میں پیش کریں گے. اس کو جواب دینا ہوگا. پرویز الہی راجہ ادھر بنے بیٹھے ہیں. سیاسی انا کی تسکین کے لیے آئینی عمل میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. کھیل تماشا کرنے نہیں آئے. 12 کروڑ عوام کے لیے میزانیہ دینا ہے. اجلاس بھی ہوگا، بجٹ بھی پیش کریں گے. حمزہ شہباز کی للکار. جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اجلاس پروروگ ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کے اندر اعلان کیا کہ آئی جی آپ کو جو ذمہ داری ملی ہے تو اجلاس کے اندر بجٹ کو پیش کریں. جب اجلاس کل دوپہر کو 3 بجے ہوگا، ایک فیئر انوائرمنٹ میں ہوگا، تو ہم عوام کے سامنے کل انشاءاللہ ایک بجٹ بھی پیش کریں گے. آئین پانی کی طرح ہوتا ہے، اپنا راستہ خود نکالتا ہے. ہم عوام کو جواب دہ ہیں. شفاف طریقے سے ایوان کی کارروائی چلانے کا حق دیا جائے. اویس لغاری کا مطالبہ. گورنر نے آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اجلاس طلب کیا. اپوزیشن کو عوام کی پرواہ نہیں، عطا تارڑ کا الزام. میں نے دعوت دی 3 دفعہ لغاری صاحب کو کہ آئیں بجٹ پیش کر. بجٹ پیش کرنے کی بجائے انہوں نے آج خود ہی کوئی بات کر دیجیے کہ وہ اجلاس تو گورنر صاحب پروروگ کر دیا ہے. اور اگر اجلاس بلانے کا بھی وہ ایک طریقہ ہے، اسپیکر کے ہوتے ڈپٹی اسپیکر نہیں پرزائڈ کر سکتا، یہ قانون ہے. یہ تاریخ کے ایک بڑا بدنما داغ. پہلے انہوں نے غلط الیکشن کرا کیا. اس طرح کے غیر قانونی ہتھکنڈے جو ہیں وہ کسی صورت ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے. اسپیکر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی 1 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا. اسپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کارروائی نہیں چلا سکتا. اجلاس بلانے کا طریقہ کار طے. سیشن بلانے کے لیے گورنر سیکرٹری اسمبلی کو لکھے گا. انہوں نے پہلے غلط الیکشن کرایا، آج دوسرا بدنما داغ اپنے ماتھے پر لگایا. چودھری پرویز الہی کی میڈیا ٹاک. بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیف، ڈی جی ایس آئی، اس تمام موجود تھے. اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ، بہت مفصل انداز میں شرکاء کو ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. پچھلے کچھ عرصے سے جو افواج کو اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، من گھڑت بے بنیاد افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی سازش نہیں ہوئی. ترجمان پاک فوج نے بیانیہ یکسر مسترد کر دیا. قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں میں ہماری طرف سے کلیئر بتا دیا گیا تھا، کوئی ثبوت نہیں ملے. تینوں سروسز چیف بھی میٹنگ میں موجود تھے. کچھ عرصے سے مسلح افواج اور اس کی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کو حقائق مسخ کرنے کا حق نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی آن دا فرنٹ میں گفتگو. ان کی طرف سے بہت لابنگ کی گئی کہ پاکستان کو کسی طریقے سے بلیک لسٹ کر دیا جائے، اور انہوں نے بڑے اعلان اس چیز کے اوپر کامنٹس بھی دیے. 2019 میں گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی اسٹاف کی ڈائریکشنز پہ جو ہمارا ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ ہے، اس میں ڈی جی ایم او کے انڈر ایک اسپیشل سیل
सेल कायम किया गया और इस सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर एक मौसर लाए अमल बना के दिया। उन लॉज की इफेक्टिव होने की वजह से 58 बिलियन रुपीस पाकिस्तान ने रिकवर किए हैं। भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए बहुत लॉबिंग की। हिंदुस्तान किसी भी तरीके से हमें ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता था। 2019 में हुकूमती दरख्वास्त पर GHQ में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरी में स्पेशल सेल कायम किया गया था। दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी गई। DG ISPR। से पाकिस्तान फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। इन चैलेंजेस के बावजूद और इस शरह महंगाई के बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हरबी सलाहियतों में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। पाक फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। अब फौज में यूटिलिटी बिल्स, डीजल और पेट्रोल कीमत में बचत की जा रही है। आर्मी चीफ के हालिया दौरा चीन में कई मेमोरेंडम फाइनल किए गए। दूरस्थ नताज बरामद होंगे। CPEC की सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे काम जारी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इजहार ख्याल। परवेज मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनकी फैमिली ने करना है। इंतजामात किए जा सकते हैं। सवाल पर जवाब। परवेज मुशर्रफ से ज़ाती अनात या दुश्मनी नहीं चाहता कि अपने प्यारों के हवाले से जो सदमे मैंने बर्दाश्त किए किसी और को भी सहना पड़े। साबिक सदर पाकिस्तान आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। नवाज शरीफ का ट्वीट। $1 खरब 714 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना है विथ नो न्यू टैक्सेस 2016, 2017, 2018, 2019 और 2021 में एडमिसिबल टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो भी हमने दिए थे वो हम मर्ज कर रहे हैं बेसिक पे स्केल 2022 में एडॉक रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे स्केल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एम्प्लॉइज इज बीइंग प्रपोज्ड। अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बचत ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। पेंशन में हम 5% बढ़ा रहे हैं। ऑपोजिशन की हंगामा राय के दौरान सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। पेंशन 5% बढ़ा दी गई। मजमूई खसारा 33 अरब। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 362 अरब रुपए मुख्तस। बजट तकरीर के दौरान मुराद अली शाह की जुबान फिसल गई। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कह दिया। हिस्ब इख्तिलाफ पर भी शदीद तनकीद। Madam Speaker, I must thank the Prime Minister of Pakistan, Mir Mohammad Nawaz Sharif, his team. मैंने शहबाज शरीफ कहा था। अच्छा जी। क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो यार? अरे दे देना। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? सिंध असम्बली के इजलास में हंगामा आराई खवातीन की हाथापाई। PTI का PP रुकन कुलसूम चांडियों की जानिब से दुआ भुट्टो पर हमले और मोबाइल छीनने का इल्जाम। मुनव्वर विसान सेलफोन लेकर फरार हो गए। PP रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ऐलान। हमने स्पीकर साहिबा के पास गए, हमने जाके उनको वीडियो दिखाई, हमने उनको सबूत दिखाया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। मैं खुद चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया, उनसे मैंने गुजारिश की, उन्होंने कहा जाओ हम कुछ नहीं करते, कोई सबूत लेकर आओ। सबूत भी हमारे पास मौजूद है। जिस तरह सूबे भर में मोबाइल चोरों की, डकैतों की FIR कटती है, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के MPs की FIR कटे। 2 घंटे से हम लोग यहाँ पर FIR कटवाने के लिए बैठे हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ ने ऐवान का माहौल खराब किया। मैंने हमला नहीं किया। दुआ भुट्टो ने आकर लड़ाई की। अरसलान ताज भी साथ, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। PP रुकन कुलसूम चांडियों का मौके। तमाम वज़राए आज़म ने लियाकत अली ख़ान से लेकर और शाहिद अब्बासी और नासिर मुल्क तक जितने वज़राए आज़म आए 71 साल में, जितना कर्ज उन्होंने लिया है उसका अकेला इमरान खान साहब ने 4.25 साल में उसका 80% लिया। तो शौकत अली साहब ने कहा कि नहीं हमने 80% नहीं लिया, हमने सिर्फ 76% लिया।
PTI दौर में मजमूई हजम के 79% कर्जे लिए गए, अदायगियाँ बहुत बड़ा मसला है। वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब, अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, आयशा गौस पाशा का इजहार ख्याल। इमरान दौरे हुकूमत में करप्शन के नए तरीके अपनाए गए। बरतानिया में पकड़े गए 50 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराने की बजाय हिस्सा वसूल करके 5 अरब एडजस्ट कर दिए गए। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया का दस्तखत शुदा मुआहदा भी सामने ले आए। शहजाद अकबर पर मामला तय कराने का इल्ज़ाम। जब काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली जाती हो तो ईस्ट रिकवरी यूनिट मिनीगाला गैंग का मेकिंग यूनिट बन जाता है। नाजायज काम के एवज सैकड़ों किनाल अराजी और अरबों रुपए हत्याए गए। फितना खान ने तारीख के सबसे बड़े डाके डाले, मरियम नवाज का ट्वीट। अमरीका ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की। हमने अपने दौर में 200 अरब रुपए की सब्सिडी रखी, इन्होंने 10 रोज़ में पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। अपनी लूट मार बचाने वालों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक, जल्द इस्लामाबाद पहुँचने की कॉल दूंगा। इमरान खान का इज्तिमा से खिताब। ECL रूल्स में तरमीम से बाइख्तियार अफराद ने फ़ायदा उठाया, समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से इतनी जल्दी नाम निकालने की क्या ज़रूरत थी। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट से यकतरफा कानून साजी भी आईनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ ना करे। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। ECL से मुतालिक SOPs मजीद शफाफ बनाने का हुक्म। वज़ीर ख़ारजा का दौरा तेहरान, आला हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। तेहरान के साथ तवानाई के मामलात पर भी बातचीत की गई। दुनिया को भारत में इस्लामोफोबिया के वाक़यात की मसम्मत करना होगी। बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अर्जेंटाइन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। जनरल जॉन मार्टिन की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से अलग अलग मुलाकात। दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। शॉर्टफॉल 6709 मेगावाट। मुल्क भर में बिजली का शदीद बहरान। तवील लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। शहरी इलाकों में दुरानियां 10 से 12, देहात में 14 घंटे से भी तजावुज़। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपये 28 पैसे इजाफा। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में वॉल्टन रोड पर फायरिंग। मियाँ बीवी समेत 4 अफराद कत्ल। खातून और एक मर्द की किरण और आसिफ के नाम से शनाख्त। अजीज और रिजवान की लाशें भी अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी सदर 15 जुलाई को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे। जो बाइडन की शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें शेड्यूल। खलीजी ममालिक के सरबराह की कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। न्यूजीलैंड को 5 विकेट से शिकस्त। इंग्लैंड ने नॉटिंघम टेस्ट जीत लिया। इंग्लिश टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। 136 रन की फातिहाना इनिंग्स खेलने वाले जोनी बेयरस्टो प्लेयर ऑफ द मैच करार।